Today we will start with the topic direction cosines. Directions of cosines are defined for a vector in the chapter Vectors and 3D. Let's say these are the coordinate axes x, y and z axis. Let's say vector OP, this is the OP vector. This makes angle alpha with the positive direction of x axis, beta with the positive direction of y axis, and gamma with the positive direction of z axis. Then cos alpha, cos beta and cos gamma are called the direction cosines. In the short form, we can term these as DCs of the directed line, that means a vector OP vector. These are called direction cosines. These are also termed as LMN. We mean to say L will be called cos alpha, M will be called cos beta, and N will be called cos gamma. These are the direction cosines. Now let's say we drop a perpendicular from P on the x-axis. Let this length OP is R. What we can observe in triangle OPM, we can say in triangle OPM cos alpha is equal to base by hypotenuse. Here the base is OM and the hypotenuse is R. So we can say here OM equal to R cos alpha. Let's say this point is x comma y comma z. Then we can say that the distance OM is x coordinate if this point is lying in the first quadrant. So we can say that x equal to R cos alpha. Now we have termed cos alpha as L. So let us replace cos alpha with L. So we can say that L equal to x by R. Now we will derive one result from here. You can see that the distance OP, let's use distance formula between the point O 0 0 0 and P x y z. OP equal to, by distance formula it is equal to x square plus y square plus z square का under root, and OP is R x square y square z square under root. So we can say that x square plus y square plus z square will be equal to R square. अभी हमने यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकाली है, L into R, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं x के प्लेस पे L into R, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. इसी तरह से हम y की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं. तो y की वैल्यू हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, अगर हम ये यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो यहाँ से ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस y हो जाएगा. तो ये इस ट्रायंगल OPN में हम cos बीटा अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो cos बीटा क्या हो जाएगा हमारा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज. तो बेस क्या है इसका, y है, हाइपोटेन्यूज क्या है, r है. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि cos बीटा को हमने क्या नाम दिया था, m का, cos अल्फा cos बीटा cos गामा को हमने LMN लिखा है. तो ये cos बीटा m हो गया. तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, r इंटू m आ गई. तो यहाँ पर हम y के प्लेस पे m इंटू r पुट कर देते हैं. इसी तरह से z के प्लेस पे हम n इंटू r पुट कर सकते हैं. अब r स्क्वायर कैंसल्स आउट हो जाएगा on the both sides. So we can say that L square plus n square m square equal to 1. So this is an important property regarding the direction cosines, that the sum of the squares of the direction cosines is always equal to 1. तो ये फार्मूला हमें याद रखना है, L square plus m square plus n square equal to 1. तो एक बार हम यहाँ से समराइज कर लेते हैं कि हमने ये OP वेक्टर के लिए क्या क्या स्टडी किया है. एक तो x इक्वल टू L इंटू आर है, y इक्वल टू m इंटू आर है, z इक्वल टू n इंटू आर है, और L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 है. अब ऐसा करते हैं कि
ओपी वेक्टर को अगर लिखने की कोशिश करें, ओपी वेक्टर को अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम ओपी वेक्टर को? ये एंगल्स यहां से हम अभी हटा देते हैं। तो ओपी वेक्टर जो है, क्या हम ये कह सकते हैं कि ओएम वेक्टर एक्सआई वेक्टर है, और इसी प्रकार से जो है इसके ये एक्स कंपोनेंट हो गया ओपी वेक्टर का। तो ओपी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? एक्सआई प्लस वाईजे प्लस जेड के। ओपी वेक्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ all the components. xi इसका the component along x axis है, yj इसका component along y axis है, and z के इसका component along z axis है। तो ओपी वेक्टर को हम xi प्लस yj प्लस z के लिख सकते हैं। अब यहां से हम देखें तो x की वैल्यू क्या है? l इंटू आर है, y की वैल्यू क्या है? m इंटू आर है, और z की वैल्यू क्या है? n इंटू आर है। तो यहां से हम r अगर कॉमन ले लें तो li प्लस mj प्लस n के हो जाएगा ये ओपी वेक्टर। बट आर कौन था? आर तो हमारी ओपी की लेंथ ही थी, तो आर को हम इसके नीचे ले आते हैं, तो यहाँ पे आर के प्लेस पे हम ओपी लेंथ भी लिख सकते हैं। सो दिस इज एल आई प्लस एमजे प्लस एन के। अब ये आपको पता ही होगा कि ओपी वेक्टर बाय ओपी को हम कैसे लिख सकते हैं? हम ओपी कैप के प्लेस की जगह भी लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर एल आई प्लस एमजे प्लस एन के। तो ये भी जो है हमें इस फॉर्मूले को भी याद रखना है। तो दो फॉर्मूले में बेसिकली याद रखने हैं कि अगर एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइंस है तो एक तो उनका सम ऑफ स्क्वायर्स जो है वो 1 होगा, ये हमें याद रखना है। और एक हमें ये याद रखना है कि अगर किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस एलएमएन है तो उनके साथ अगर आईजे का लगा दिया जाए तो उससे हमें रिक्वायर्ड वेक्टर मिल जाएगा जो कि यूनिट वेक्टर होगा। ऑब्वियसली इनका स्क्वायर करने पे 1 मिलेगा, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो इसको हम यूनिट वेक्टर भी कह सकते हैं। ये दो फॉर्मूले जो है हमें याद रखने हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, डायरेक्शन रेशियोज। नाउ वी विल स्टडी डायरेक्शन रेशियोज। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शन रेशियोज? डायरेक्शन रेशियोज, any three quantities, let's term these as ABC, numbers ABC which are proportional to direction cosines lmn, numbers ABC which are proportional to direction cosines lmn are called direction ratios. इसे हम DRs भी कह सकते हैं। दैट मीन्स A होगा हमारा लैम्डा इंटू एल, बी होगा हमारा लैम्डा इंटू एम, सी होगा हमारा लैम्डा इंटू एन। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन 1/√3 1/√3 1/√3 है, मान लो ये एक डायरेक्शन कोसाइंस है किसी वेक्टर के या किसी डायरेक्टेड लाइन के, तो इसे अगर हम √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 1 1 1 मिलेगा। दीज विल बी कॉल्ड द डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइंस को हम किसी भी क्वांटिटी लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें, नॉन जीरो क्वांटिटी होनी चाहिए, तो उससे हमें डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे, क्योंकि एक रेशियो हमें यहां से फाइंड आउट होगा। और इसी तरह से हम इसको 2√3 2√3 2√3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमें 2 2 भी मिल सकता है, -1 -1 -1 भी मिल सकता है। इसको हम 5√3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 5 5 5 भी मिल सकता है। तो इसका मीनिंग यह हुआ कि डायरेक्शन रेशियो जो है किसी भी वेक्टर के वो यूनिक नहीं होंगे। देयर विल बी इनफाइनाइट सेट्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन और ए वेक्टर, इनफाइनाइट सेट्स होंगे। एंड डायरेक्शन कोसाइंस तो यूनिक होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होंगे। द रीजन बीइंग, ऑब्वियसली कोई भी लाइन हम बनाएंगे तो उसका एक फिक्स एंगल अल्फा बीटा गामा बनेगा तीनों एक्सिस के साथ। तो कॉस अल्फा की वैल्यू तो फिक्स हो जाएगी, तो कॉस अल्फा की वैल्यू फिक्स हो जाएगी तो एलएमएन की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। तो ये किसी भी लाइन के लिए जो है डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो यूनिक होंगे। डायरेक्शन कोसाइंस, सो वी कैन से डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर आर यूनिक। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर आर यूनिक। Now what do you mean by direction cosines of a line?
नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वेक्टर एंड अ लाइन? जैसे हम एक वेक्टर ओपी वेक्टर बनाए, दिस इज ओपी वेक्टर, तो इसका एक फिक्स एंगल अल्फा होगा, एक फिक्स एंगल बीटा होगा, एक फिक्स एंगल गामा होगा। तो इसके एलएमएन तो हमारे फिक्स हो जाएंगे किसी भी वेक्टर के लिए। बट अगर इसको मैं ओपी वेक्टर के प्लेस पे, मान लीजिए कि ओपी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस एलएमएन है, तो पीओ वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? अब अगर हम पीओ वेक्टर यहां पे बनाए तो ऑब्वियसली इस वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर हम एंगल लें तो ये लाइन हमें इधर प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, क्योंकि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमें कभी भी अगर फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हम कोई इनिशियल वेक्टर्स लेते हैं। जैसे कि ये वेक्टर्स हैं हमारे, तो इनके बीच में अगर ये मान लो 30 डिग्री है तो इनके बीच में एंगल 30 नहीं माना जाएगा। इस वेक्टर को आगे प्रोड्यूस किया जाएगा, फिर ये वेक्टर यहां से इरेज करके, अब ये वेक्टर हमारे को इनिशियल हो गए, अब ये इनके बीच में एंगल माना जाएगा 150। तो इसके बीच में अब एंगल अल्फा नहीं हम कह सकते हैं, गामा तो हम यहां से हटा देते हैं, अभी बीटा भी यहां से भी हम इरेज कर देते हैं। और एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल देखा जाए तो अब ये पीओ वेक्टर इस डायरेक्शन में है बेसिकली, तो ये डायरेक्शन में है, तो ये अब कोई इनिशियल वेक्टर दोनों नहीं है, तो इसको यहां से हम मिटा देते हैं। ये पीओ वेक्टर की डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पीओ वेक्टर। अब इन दोनों के बीच में एंगल ये बनेगा, तो ये एंगल अगर अल्फा था तो ये क्या होगा 180 डिग्री माइनस अल्फा। तो इसका जो एल होगा वो होगा कॉस 180 डिग्री माइनस अल्फा, दैट इज माइनस कॉस अल्फा। तो इसका मतलब माइनस ऑफ एल, यू कैन से माइनस ऑफ एल। ये जो नया डायरेक्शन हमारे कोसाइन होंगे वो माइनस एल हो जाएगा। तो इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन हमारे हो जाएंगे माइनस एल, माइनस एम और माइनस एन। तो अगर हम वेक्टर दोनों डायरेक्शन में लेते हैं तो जो वेक्टर हम एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं उसके अगर डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है तो रिवर्स डायरेक्शन में माइनस एल एम एन हो जाएंगे। और डायरेक्शन रेशियोज तो हमारे इनफाइनाइट सेट्स होंगे, वो तो लैम्डा लैम्डा एम लैम्डा एन है, तो लैम्डा को हम कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं। अब हम डायरेक्शन, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस फ्रॉम डायरेक्शन रेशियोज। मान लो किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस एलएमएन है और डायरेक्शन रेशियोज एबीसी है, तो हमें पता है कि ए होता है लैम्डा एल, बी होता है लैम्डा एम, सी होता है लैम्डा एन। अब यहां से हम डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एल from this equation. This is a by lambda, the value of m is b by lambda, and the value of n is c by lambda. So the value of lambda we obtain from here is a square plus b square plus c square, this is lambda square, and lambda will be plus minus under root of a square plus b square plus c square. तो क्या हम यहां से बता सकते हैं कि lmn की वैल्यू क्या होगी? तो l की वैल्यू क्या होगी? यहां से l की वैल्यू होगी a by lambda. So this is a by plus minus root of a square plus b square plus c square. Similarly हम m and n की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या, हम जो है यहां से रिजल्ट बना सकते हैं। द रिजल्ट इज इफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन आर lmn, then its direction ratios will be, ये रिजल्ट हम यहां से ले लेते हैं, डायरेक्शन सॉरी, if the direction ratios of a line are ABC, then their direction cosines will be, क्या होंगे डायरेक्शन कोसाइंस? ये हम यहां से रिजल्ट ले लेते हैं, ये हमने यहां से डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट किए, ये होंगे इसके डायरेक्शन कोसाइंस। तो हम कह सकते हैं कि इसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे प्लस माइनस a बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, b बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड c बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस माने जाएंगे। ये रिजल्ट हमें याद रखना है। Now one more result is there. How to find direction ratios
ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। अगर हमें दो पॉइंट्स दिए हैं तो हम उसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हम इसमें दो पॉइंट्स एज्यूम कर लेते हैं ए एंड बी। मान लीजिए ये पॉइंट x1 y1 z1 है और ये पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं x2 y2 z2 है। यू कैन क्लियरली सी दैट द बेस विल बी x2 माइनस x1, बिकॉज ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से लेकर यहां तक का, ये डिस्टेंस हमारा x1 है और ये जो डिस्टेंस है हमारा ओरिजिन से यहां तक का ये x2 है। x कोऑर्डिनेट्स हैं ये, तो इनका डिफरेंस x2 माइनस x1 है। अब ये एंगल लाइन का बन रहा है x एक्सिस के साथ। अब x एक्सिस हमारा इस लाइन के पैरेलल है AM लाइन के, तो x के साथ अगर लाइन AB एंगल अल्फा बनाती है तो AM के साथ भी अल्फा ही बनाएगी। तो यहां से अगर हम cos अल्फा फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय AB। बट cos अल्फा को तो हम बोलते हैं L, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि AB इंटू L जो है वो हमारा हो गया x2 माइनस x1। तो दैट मीन्स द वैल्यूज ऑफ L इंटू AB एंड M इंटू AB एंड N इंटू AB, these values will be x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1। बट ये क्वांटिटीज कौन है? L इंटू AB, M इंटू AB, N इंटू AB। अभी हमने पढ़ा है कि अगर हम L M N को किसी भी लैम्डा क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या कहलाएंगे? डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगे। तो ये अगर डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो इनको AB से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा? डायरेक्शन रेशियोज। तो ये तीनों कौन हुए? फिर डायरेक्शन रेशियोज हुए। तो यहां से हम ये रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि डायरेक्शन ratios of a line joining two points are direction ratios of a line joining points a x1 y1 z1 and b x2 y2 z2 are x2 minus x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ये रिजल्ट हमें याद रखना है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर हमें दो पॉइंट्स दिए हैं तो उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज अगर हमें फाइंड आउट करने हो तो उन पॉइंट्स को रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहां से हम AB वेक्टर भी लिख सकते हैं। AB वेक्टर क्या होता है? OB माइनस OA। OB वेक्टर हमारा क्या है? x2i प्लस y2j प्लस z2k। और OA वेक्टर हमारा क्या है? x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो ये क्या मिला हमें? x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। बट यहां पर हमने x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 को क्या बोला है? डायरेक्शन रेशियो बोला है। तो यानी ये चीज जो तीनों चीजें हैं ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। अगर हम डायरेक्शन रेशियोज को ABC लिखना चाहें तो हम इस वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि किसी लाइन के अगर डायरेक्शन रेशियोज ABC हैं तो उनके साथ IJ के लगा के हम उस वेक्टर को लिख सकते हैं। ये रिजल्ट हमें याद रखना है कि अगर किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ABC है तो वेक्टर होगा AI प्लस BJ प्लस CK। अब हम डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा with the positive direction of x axis, y axis and z axis, then prove that sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to 1। ये रिजल्ट फर्दर भी यूज हो सकता है आगे किसी क्वेश्चन में, तो इसलिए इसको याद रखें। वी नो दैट अभी हमने डायरेक्शन कोसाइंस को स्टडी किया है, तो वहां से हमें एक फॉर्मूला मिला था कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा का सम हमेशा 1 होता है। तो cos स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर को हम बीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1।
अब ये 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब ये 1 को इधर ले आए हम, तो 3 - 1 = sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा। तो हम ये इजीली प्रूव कर सकते हैं कि ये, सॉरी, इसे हमें प्रूव करना है कि ये 2 के इक्वल टू है, ये 2 के इक्वल टू होगा, ये हमें याद रखना है। तो ये रिजल्ट हमने यहां पर प्रूव कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल। If a line lies in xy plane and makes angles angle 30 degree with the positive direction of x-axis, then find its direction cosines। तो हम पहले फिगर फॉर्म कर लें इसकी। ये x, y एंड z एक्सिस हैं। ये लाइन 30 डिग्री एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ। तो ये लाइन जो है इस तरह से भी हो सकती है। You can say this line OP makes angle 30 degree with the OX। दो सिचुएशंस पॉसिबल हैं। यहां पर भी हमारी लाइन 30 डिग्री एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, और यहां भी हमारी लाइन 30 डिग्री एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। इस फिगर की अगर बात करें तो ये एंगल हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये लाइन हमारी एक्स वाई प्लेन में है, इसलिए 60 हो जाएगा। यहां पर हमारा एंगल एक्स एक्सिस के साथ हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहां से हमें अल्फा एंगल मिल गया 30 डिग्री, बीटा एंगल मिल गया 60 डिग्री, और यहां से हमें अल्फा एंगल मिल गया 30 डिग्री, और यू कैन से -30 भी हम लिख सकते हैं या 30 लिखें, जो भी लिखना चाहें। और यहां से बीटा में मिल गया 120 डिग्री, या -120 लिख लें, वैसे इट मेक्स नो सेंस, माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि cos अल्फा में फाइंड आउट करना है, एंड cos 30 is √3/2 and cos -30 is also equal to √3/2। तो डायरेक्शंस को साइंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम -30 लिखें या +30 लिखें, दैट विल मीन सेम। और यहाँ पे गामा एंगल हमारा हो गया 90, क्योंकि ये लाइन एक्स वाई प्लेन में है। तो एक्स वाई प्लेन में जो लाइन होती है वो जेड एक्सिस के साथ 90 एंगल बनाती है। तो ये लाइन 90 एंगल बनाएगी जेड एक्सिस के साथ। यहाँ पर भी गामा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ हमारे डायरेक्शन को साइंस क्या हो जाएंगे, ये डायरेक्शन को साइंस हमारे हो जाएंगे cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। सो दिस इज √3/2, cos 30 एंड cos 60 इज हाफ एंड cos 90 इज 0। यहाँ पर हमारे डायरेक्शन को साइंस हो जाएंगे cos 30 यानी कि √3/2, cos 120 यानी कि -हाफ एंड cos 90 यानी कि 0। तो ये हमारे डायरेक्शन को साइंस हो जाएंगे अगर कोई लाइन हमारी 30 एंगल बना रही है तो। अब ये तो हमने ओपी वेक्टर के डायरेक्शन को साइंस फाइंड आउट किए हैं। अब अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड कर दें, अगर हम वेक्टर एज्यूम ना करें, इसको एक लाइन एज्यूम करें, तो लाइन का एंगल तो 150 भी कह सकते हैं हम। एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल 150 है। ये तो हमने ओपी वेक्टर के बेसिकली डायरेक्शन को साइंस फाइंड आउट किए हैं। अगर हम पीओ वेक्टर के डायरेक्शन को साइंस लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे हम इसको। अभी हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर ओपी वेक्टर के डायरेक्शन को साइंस LMN है तो पीओ वेक्टर के डायरेक्शन को साइंस होंगे -LMN। तो इसे हम -√3/2, -हाफ और 0 भी लिख सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हमें वेक्टर की बात की जा रही है या फिर लाइन की बात की जा रही है। तो अगर हमें लाइन के डायरेक्शन को साइंस पूछे जाएंगे तो ये दोनों हमारे आंसर्स होंगे। अगर हमें सिर्फ ओपी वेक्टर के डायरेक्शन को साइंस पूछे जाएंगे तो केवल ये आंसर होगा। तो यहाँ पे हमें दोनों आंसर्स लिखने हैं -दिस। These direction cosines are for OP vector and these are for PO vector। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फाइंड
direction cosines of a line which is equally inclined with x, y and z एक्सिस, तीनों एक्सिस से जो इक्वली इंक्लाइंड हो उस लाइन के हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं। तो अगर कोई लाइन x, y, z तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रही है देन अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। अब हमें ये पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, बट अगर अल्फा इक्वल टू बीटा हो गया तो कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा हो जाएगा, एंड कॉस अल्फा को हम डिनोट करते हैं एल से, तो एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर एल एम एन की वैल्यू हम सेम कर दें then we will get L square plus I square equal to 1. So 3L square equal to 1. So L square equal to 1 by 3. So L equal to plus minus 1 by root 3. तो जो L की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है सेम वैल्यू M की होगी, सेम वैल्यू N की होगी, क्योंकि तीनों क्वांटिटीज सेम है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, प्लस माइनस ऑफ 1 by root 3 एंड 1 by root 3 एंड 1 by root 3, ये होंगे डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये भी हमें रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इक्वली इंक्लाइंड जो लाइन होगी ये हमें रिमेंबर करना है, याद रखना है आगे के लिए कि कोई भी लाइन अगर इक्वली इंक्लाइंड हो तीनों एक्सिस के साथ तो उसके डायरेक्शन को साइंस 1 by root 3, 1 by root 3 एंड 1 by root 3 होंगे विद प्लस माइनस साइन। दिस यू हैव टू रिमेंबर। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड टू अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड डायरेक्शन ratios of diagonals of a cube whose sides are along the coordinate axis. तो पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं। This is x axis, this is y axis, this is z axis, this is origin. Let us make a cube with this side length equal to small a. If we take each side length equal to small a, then what will be, let's say first of all start with point A. What will be point A? The side length OA is small a. So this will be a comma 0 comma 0. Is it clear? Now what will be point B? This is a along the x axis and a along the y axis. So a comma 0. Now what will be point C? This is 0 comma a comma 0. What will be point D? D पे जाने के लिए what we have to do? We have to travel along y axis, then along z axis. So we have to travel a along y axis and a along z axis. What will be point E? This will be 0 0 a. What will be point F? We have to travel along x and along z. So this is a 0 a. What will be point P? This is a comma a comma a. Now first of all, what are the diagonals of a cube? Now OF is the face diagonal. ये हम बॉडी डायगोनल की बात कर रहे हैं, जो डायगोनल की बात कर रहे हैं, नॉट द फेस डायगोनल। OF हमारा फेस डायगोनल होगा, OD भी फेस डायगोनल होगा, OB फेस डायगोनल होगा, AC फेस डायगोनल होगा, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल कौन होगा? बॉडी डायगोनल कौन होता है? किसी भी पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से अगर हम ज्वाइन करेंगे, जैसे कि OP, this will be the body diagonal. So the diagonals are OP, और कौन है इसके डायगोनल? तो A को हम किससे ज्वाइन करेंगे? A को हम किससे ज्वाइन करेंगे? A को हम ज्वाइन करेंगे इसके बिल्कुल अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? D पॉइंट है। सो नेक्स्ट हमारा जो डायगोनल होगा वो होगा AD।
और हम बी पॉइंट को किससे ज्वाइन करेंगे, बी पॉइंट के अपोजिट कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट। सो नेक्स्ट डायगोनल हमारा होगा बीई। और हमारा बचा पॉइंट सी, तो सी को हम किससे ज्वाइन करेंगे, सी के अपोजिट कौन सा पॉइंट है हमारा, एफ पॉइंट है। सो द अनदर डायगोनल विल बी सी एफ। तो ये हमारे 4 डायगोनल्स हैं जो क्यूब के होंगे। अब इनके हम डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करना चाहते हैं। अभी हमने जस्ट अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हम 2 पॉइंट्स हमें दिए हों तो हम उसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी क्या होंगे, अभी हमने फॉर्मूला ये निकाला था x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो x2 और x1 यहां पर हमारा ये 0 0 0, तो x1 y1 z1 है एंड a x2 y2 z2 है। तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, a माइनस 0 a माइनस 0 a माइनस 0। सो वी विल गेट a कोमा a कोमा a। अब जैसे कि आपको पता है कि डायरेक्शन रेशियो जब हम फाइंड आउट करते हैं, सो दीज आर जस्ट द रेशियोज। तो इसे हम किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर इनफाइनाइट सेट्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज को हम ए भी लिख सकते हैं या 1 1 1 भी लिख सकते हैं, -1 -1 -1 भी लिख सकते हैं, 2a 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 भी लिख सकते हैं। किसी भी क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड इसको कर सकते हैं। तो 1 1 1 याद रखने में आसान रहेगा, तो इसे हम 1 1 1 लिख लेते हैं। अब हमें डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने हैं एडी के। तो डायरेक्शन रेशियोज एडी के क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एडीआर। तो एडी में हम ये डी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो डी माइनस ए कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, 0 माइनस ए एंड नेक्स्ट ए माइनस 0 एंड नेक्स्ट ए माइनस 0। तो इसे अगर हम ए से डिवाइड कर दें, सो दिस विल बिकम्स -1 1 एंड 1। इसी तरह से अब हम डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट कर लेते हैं बी के। तो डायरेक्शन रेशियो बी के क्या होंगे, बी के डायरेक्शन रेशियोज हमारे होंगे, हम ई पॉइंट में से बी माइनस कर लेते हैं। तो ई माइनस बी, ई माइनस बी क्या हुआ हमारा, 0 माइनस ए 0 माइनस ए एंड ए माइनस 0। तो इसे हम ऐसा करते हैं कि माइनस ए से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 1 1 एंड -1। ये डायरेक्शन हमारे रेशियोज हो जाएंगे। और ये हमारे यहाँ पर एक डायरेक्शन रेशियोज ये आ चुके हैं और एक हमारे डायरेक्शन रेशियोज ये आ चुके हैं। अब हम जो है सी एफ के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सी एफ के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी एफ आर। तो सी एफ में हम एफ माइनस सी कर लेते हैं। तो एफ माइनस सी करें अगर, एफ माइनस सी, तो क्या मिलेगा, ए माइनस 0 0 माइनस ए एंड ए माइनस 0। तो क्या मिलेगा हमें, ए से डिवाइड कर लेते हैं। तो 1 -1 एंड 1। तो ये हो गए डायरेक्शन रेशियोज। तो ये हमें आगे के लिए याद भी रखने हैं, कहीं पे हमारे यूज हो सकते हैं। 4 डायगोनल होंगे, चारों के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, सबसे पहले के 1 1 1 होंगे। देन फर्स्ट वाले को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो -1 1 1। देन नेक्स्ट वन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 -1 1 एंड लास्ट वाले को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 1 -1। तो ये हमें इसको याद रखना है कि डायरेक्शन रेशियोज 1 1 1 होंगे, -1 1 1 होंगे, 1 -1 1 होंगे एंड 1 1 -1। ये चारों डायरेक्शन रेशियोज होंगे डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब के। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डायरेक्शन cosines of 2 lines whose direction cosines are connected by the relation 3l plus m plus 5n equal to 0 and 6mn minus 2nl plus 5lm इक्वल टू 0। ये 2 लाइंस के हमें डायरेक्शन कोसाइंस दिए गए हैं। इन रिलेशंस के थ्रू हमें इससे फाइंड आउट करना है। तो ऐसा करते हैं, पहले हम इसमें से n को एलिमिनेट कर लेते हैं या m को एलिमिनेट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से m की वैल्यू क्या आई, -3l -5n आ गई। और सेकंड इक्वेशन हमारी ये थी,
हमें दो लाइंस के डायरेक्शन को साइंस फाइंड आउट करने हैं, LMN, L1 M1 N1 एंड L2 M2 M2, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। ये दो इक्वेशंस हमें दी गई हैं। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन से m की वैल्यू यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में डाल देते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, -3l - 5n -2nl + 5l इंटू -3l - 5n इक्वल टू 0। सो -18 and -2 -20 and -25, so -45 NL, ये हो गया हमारे पास -18 और -2 -20 और -25 -45, और क्या मिला हमें 6 5 30 -30 n स्क्वायर, और हमें यहाँ से क्या मिलेगा -15 L स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे -15 से डिवाइड कर देते हैं, तो -15 से डिवाइड करेंगे तो 3nl + 2n स्क्वायर + L स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसे हम अगर क्वाड्रेटिक की इक्वेशन की तरह अज्यूम करें, या फिर हम इसे मान लीजिए कि n स्क्वायर से डिवाइड कर दें। हमने इसे n स्क्वायर से डिवाइड किया, इसे n स्क्वायर से डिवाइड किया, इसे n स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ये हमें मिल गया। अब इक्वेशन है, इसके फैक्टर्स बनेंगे L1 + 1 एंड L1 + 2, ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो यहां से हमें दो इक्वेशंस मिल गई। लेट अस कंसीडर द फर्स्ट इक्वेशन। पहले फर्स्ट इक्वेशन को लें तो L + n = +1 = 0, सेकेंड हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो यहां से हमें क्या मिला, L/n = -1, दैट इज L = -n। ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं वैल्यू, तो हमें m क्या मिलेगा, L की वैल्यू यहां पे डाल देते हैं, -3 × -n - 5n, तो क्या मिला हमें -2n मिला। तो LMN का रेशियो क्या हो गया हमारे पास, L = क्या था -n, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां 1 होगा तो यहां -1 होगा। L = -n है, तो यहां 1 तो यहां -1, L = -n हो गया। और M = क्या है -2n, तो ये -2 यहां लिख दें अगर, तो ये 2 लिख दें अगर, तो यहां से देख हमें M = -2n मिल रहा है और L = -n मिल रहा है। तो इसका मतलब LMN का रेशियो हमारा क्या हो गया, 1 2 एंड -1। तो ये क्योंकि ये रेशियो है इसलिए क्या हुए, डायरेक्शन रेशियोज हुए हमें, ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए। तो हम डायरेक्शन कोसाइंस अगर फाइंड आउट करना चाहें तो उसका फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था कि डायरेक्शन रेशियो को हमें डिवाइड करना होता है 1² + 2² + 1², यानी कि √6 से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, √6 से इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो डायरेक्शन कोसाइंस हमें मिलेगा। तो ये हमें क्या मिला, एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हमें मिले हैं। अभी हमें दो लाइनों के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने थे, एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हमें मिल गए हैं, दूसरी लाइन के में डायरेक्शन कोसाइन कहां से मिलेंगे, ये सेकंड इक्वेशन से। अभी हमने ये फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया था, अब हम ये सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, L/n = -2, सो L = -2n। तो इसको हम ये इक्वेशन में डाल देते हैं, जो हमारे पास एक इक्वेशन थी, वी हैव बीन गिवन द इक्वेशन m = -3l - 5n। ये इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दी गई थी, इसको हम यूज कर लेते हैं। तो यहां पर L की वैल्यू क्या हो गई, -2n, तो ये हमें कितना मिला, n आ गया यहां से। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, LMN का रेशियो क्या मिल गया हमें, LMN का रेशियो, L और N का रेशियो क्या है, -2, या -2 यहां भी लगा दें तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। L = -2n हो गया। अब यहां से M = क्या है, n, तो यहां 1 लगा दें तो M = n हो गया। दैट मीन्स हमें दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या मिल गए, -2 1 एंड 1। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमारे क्या हो गए, डायरेक्शन कोसाइंस हो गए ± दिस बाय √6 एंड 1 बाय √6 एंड 1 बाय √6। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस, और ये हो गया हमारे पास सेकंड लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जेईई मेन में भी अक्सर, ये एडवांस में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए
LMN के जो क्वेश्चंस इस प्रकार के हैं। नाउ कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। अगर हमारे पास दो लाइनें हैं जिनके की डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 हैं, अगर ये लाइनें पैरेलल हो जाएंगी तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो इनका एंगल तो सेम ही होगा, x एक्सिस के साथ अल्फा ही होगा। तो इसका मतलब अगर दोनों का एंगल अल्फा सेम है तो दोनों का कॉस अल्फा भी सेम ही होगा। दैट मीन्स दोनों का L1 इक्वल टू L2 हो जाएगा। और अगर इसी प्रकार से जैसे अल्फा सेम है वैसे बीटा भी सेम होगा। दोनों लाइनें क्योंकि पैरेलल हैं तो इसका एंगल ले हम y के साथ या इसका एंगल ले y के साथ, ये दोनों एंगल भी सेम ही होंगे। तो इसका मतलब M1 भी M2 के इक्वल टू हो जाएगा और N1 भी N2 के इक्वल टू हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है, एक और सिचुएशन भी हो सकती है, ये है लाइन हमारी AB, ये है लाइन हमारी CD, दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो ये अगर एंगल अल्फा है तो इसका एंगल अगर हम DC वेक्टर की तरह ले लें, अगर हम AB वेक्टर लें तो हमारा एंगल अल्फा होगा। इसे हम अगर DC वेक्टर एज्यूम करें तो हमारा एंगल 180 माइनस अल्फा होगा। अब ये लाइनें तो पैरेलल ही कहलाएंगी AB एंड DC। अब उसे हम DC वेक्टर लिखें या CD वेक्टर लिखें, AB वेक्टर, लाइंस तो एक्चुअली AB एंड CD होंगी, उसको वेक्टर लिखें तो डिफरेंट बात है। तो लाइंस तो फिर भी पैरेलल ही मानी जाएंगी। तो यहाँ पर L की वैल्यू तो cos अल्फा आएगी, बट L2 की वैल्यू cos 180 माइनस अल्फा आएगी, जो कि हो जाएगी माइनस cos अल्फा। तो इसका मतलब ये माइनस साइन का इसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि L1 माइनस L2 हो जाएगा, M1 माइनस M2 हो जाएगा और N1 इक्वल टू माइनस N2 हो जाएगा। तो दो लाइंस या दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हो तो उनकी डायरेक्शन तो रिवर्स हो ही सकती है। तो डायरेक्शन अगर रिवर्स होगी तो उसमें माइनस का साइन भी हम लिख सकते हैं। दिस इज द कंडीशन फॉर द पैरेलल लाइंस। और अब अगर हम डायरेक्शन रेशियोज की बात करें तो उसमें ऑब्वियसली रेशियो सेम होगा। इफ टू लाइंस with direction ratios A1 B1 C1 and A2 B2 C2 are parallel, then तो इनका रेशियो सेम रहेगा। तो इनका रेशियो जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि इक्वल तो नहीं हो सकते, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज किसी भी लाइन के फिक्स नहीं होते हैं, उसको किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनका रेशियो दोनों का लैम्डा रहेगा, रेशियो इनका फिक्स रहेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस एंड द डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइंस तो इक्वल होंगे या माइनस का डिफरेंस आएगा, बट डायरेक्शन रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनल होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अब हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर्स। तो अगर हम एक वेक्टर एज्यूम करें, लेट से ये हमारा वेक्टर ए वेक्टर है और ये वेक्टर हमारा बी वेक्टर है। तो क्या हम बता सकते हैं कि इसमें इनका एंगल बाइसेक्टर कौन होगा? अगर ये कोई पैरेललोग्राम है, ए वेक्टर और बी वेक्टर की लेंथ सेम तो है नहीं, तो ये हो सकता है रोम्बस बने या पैरेललोग्राम बने। तो क्या इसका डायगोनल इसका एंगल बाइसेक्टर होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। जैसे ये डायग्राम बनाया तो इसमें ये एंगल ज्यादा है, ये कम है। और
लेंथ बड़ी हो जाएगी ए वेक्टर की तो ये एंगल और चेंज हो जाएगा। तो फिर कैसे किया जाए इसे, आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी रोम्बस की। अगर एबीसीडी एक रोम्बस है जिसमें कि ये सारी साइडों की लेंथ सेम है, ये लेंथ भी ए है, ये भी ए है, सब लेंथ ए हैं, तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो डायगोनल होता है दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल ऑफ ए रोम्बस। इन ए रोम्बस द डायगोनल इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एडजेसेंट साइड्स, ऑफ द एंगल बिटवीन द एडजेसेंट साइड्स। तो अगर हम यहाँ पर लेंथ सेम कर दें ए वेक्टर और बी वेक्टर की, तो वो रोम्बस बनेगा, तो हम एंगल बाइसेक्टर डायगोनल के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लेंथ सेम कैसे की जाए, तो ऐसा करते हैं, इसको यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। तो मान लीजिए हमने ओपी वेक्टर लिया जो कि ए कैप है, यानी कि वन लेंथ का हमने वेक्टर अलोंग द ए डायरेक्शन ले लिया। ये भी हमने वन लेंथ का डायरेक्शन बी कैप ले लिया, तो ये बन गया हमारा रोम्बस, तो ये बन गया डायगोनल। तो फिर डायगोनल जो है हमारा एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस की ये प्रॉपर्टी है, दोनों एंगल ये सेम हो जाएंगे। अब ये मान लीजिए आर है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आर वेक्टर हमारा ओ आर वेक्टर ए कैप प्लस बी कैप होगा। दिस इज बाय द पैरेललोग्राम लॉ। हमने पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ा था द डायगोनल इज द सम ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो ओ आर वेक्टर हमारा ए कैप प्लस बी कैप होना चाहिए बाय द पैरेललोग्राम लॉ। तो हम ये कह सकते हैं कि ओ आर वेक्टर जो है वो हमारा ए कैप प्लस बी कैप हो जाएगा। तो क्या हम यहां से ये बता सकते हैं कि ओ आर कैप कितना होगा, तो ओ आर कैप हमारा हो जाएगा ए कैप प्लस बी कैप बाय ए कैप प्लस बी कैप का मॉड, वन लेंथ का चाहिए। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन इंटरनल एंगल बिटवीन वेक्टर्स वैसे तो इंटरनल ही होता है, वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, कौन होगा ये, ऑब्वियसली ए कैप प्लस बी कैप तो होगा ही, ओ आर वेक्टर है ए कैप प्लस बी कैप, ये एंगल बाइसेक्टर के अलोंग ही है। बट अगर हम ये कहें कि क्या ये वेक्टर ओ आर डैश, क्या हम ये वेक्टर ओ आर डैश भी एंगल बाइसेक्टर के अलोंग है, ऑब्वियसली ये भी एंगल बाइसेक्टर के अलोंग है, क्योंकि हमें लेंथ तो स्पेसिफाई की नहीं गई है कि कितनी लेंथ हमें लेनी है, हमें बस एक डायरेक्शन पूछा गया है कि कोई भी वेक्टर हम एंगल बाइसेक्टर के अलोंग बता दें, लेंथ उसकी कितनी भी हो। तो क्योंकि इसकी लेंथ स्पेसिफाई नहीं है, तो इसको हम लैम्डा से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और लैम्डा कैन बी एनी रियल नंबर। और वो डिपेंड करता है कि अगर हमें डायरेक्शन ऊपर की तरफ चाहिए तो लैम्डा हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर हमें डायरेक्शन नीचे की तरफ चाहिए तो लैम्डा नेगेटिव भी हो सकता है, बट लैम्डा 0 तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये हमने वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर लिखा है जो कि ए और बी की डायरेक्शन में ही है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उसी की डायरेक्शन में, या ये कहें कि हम उसी की साइड की तरफ जा रहा है। अगर हम इधर की तरफ लेना चाहेंगे तो ये यहां पर तो ये वेक्टर हमारा हो जाएगा लैम्डा ए कैप प्लस बी कैप, और इसमें लैम्डा हमारा पॉजिटिव है। और अगर हम इधर की तरफ लेना चाहते हैं, नीचे की तरफ, तो ये वेक्टर हमारा हो जाएगा लैम्डा ए कैप प्लस बी कैप, जहां पे लैम्डा क्या है, नेगेटिव। तो ये हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि हमें डायरेक्शन वो किस प्रकार की हमसे पूछी जाती है। बेसिकली हमारा एंगल बाइसेक्टर ए कैप प्लस बी कैप होगा, लैम्डा हमें उसके साथ अटैच करना है। अगर ऊपर की तरफ डायरेक्शन चाहिए तो पॉजिटिव वैल्यू लैम्डा की ले लेंगे, नीचे चाहिए तो नेगेटिव ले लेंगे, और अगर दोनों चाहिए, जस्ट एक लाइन हमें चाहिए, तो हम प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं, बट लैम्डा को 0 नहीं लेना है। तो ये तो एंगल बाइसेक्टर हमारा हुआ। अब इसी में अगर हमें एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर पूछ लिया जाए, अब इसी में अगर हमें पूछ लिया जाए कि ये देखा जाए तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो है ये एंगल था थीटा,
जिसको हमने जो है थीटा बाय 2 और थीटा बाय 2 कर दिया, हाफ हाफ कर दिया हमने। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। तो अगर इसमें हम ये वाला एंगल बनाना चाहते हैं, लेट्स से ये 180 माइनस थीटा एंगल हो जाएगा। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल तो नहीं है, बट ये इन दोनों लाइंस के इसको हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इसको मैं अभी यहां से मिटा देता हूं। अब हम एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, तो ये डायग्राम यहां से मिटा देते हैं। तो अब अगर ये वेक्टर बी वेक्टर है तो ये क्या हो गया, माइनस बी वेक्टर हो गया। तो वैसे तो ए और बी वेक्टर्स, ये ए वेक्टर है ये बी है, इनके बीच का एंगल थीटा ही है, बट हम ये कह सकते हैं कि ये इनके बीच का एक्सटर्नल एंगल है। दिस इज द इंटरनल एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी, बट दिस इज ऑल्सो द एक्सटर्नल एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये एंगल बाइसेक्टर अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो कौन होगा, तो ऑब्वियसली ये रोम्बस हमारी यहां पे बनेगी। तो इसमें ये वेक्टर हमारा ए वेक्टर होगा और ये होगा माइनस बी, तो ये कौन हो जाएगा फिर ए कैप माइनस बी कैप। जैसे हमने अभी इस वेक्टर को ए कैप प्लस बी कैप लिखा था, इस वेक्टर को, उसी तरह से अब हम इस नीचे वाले वेक्टर को यहां तक अगर लेंथ हमारी ली जाए, अगर यहां तक लेंथ ली जाए तो इस वेक्टर को अब हम क्या लिख सकते हैं, इस वेक्टर को हम ए कैप माइनस बी कैप भी लिख सकते हैं, और लेंथ को अगर बढ़ाना हो तो उसको हम लैम्डा ए कैप माइनस बी कैप भी लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें वेक्टर अलोंग द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर चाहिए हो तो वो होगा लैम्डा ए कैप माइनस बी कैप। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से हमें जो दो बाइसेक्टर मिलेंगे, ए कैप प्लस बी कैप मिलेगा और एक ए कैप माइनस बी कैप मिलेगा। तो वेक्टर्स के बीच का अगर हमें इंटरनल एंगल बाइसेक्टर चाहिए तो हम ए कैप प्लस बी कैप ले लेंगे, एक्सटर्नल चाहिए तो हम ए कैप माइनस बी कैप यूज कर सकते हैं। तो ये हमें रिजल्ट याद रखना है कि दो वेक्टर्स ए एंड बी हैं तो उनके बीच का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा ए कैप प्लस बी कैप एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा ए कैप माइनस बी कैप। तो एक क्वेश्चन हम इस पे कर लेते हैं, फाइंड वेक्टर, यूनिट वेक्टर बेसिकली, ए कैप in xy plane such that a vector angle b vector is equal to a vector angle d vector, where b is equal to 2i plus j and d equal to I plus 2j. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये इस सिंबल का मीनिंग क्या है, ए वेक्टर दिस बी वेक्टर, ये इसका मीनिंग होता है एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये मीनिंग है इसका। ये सिंबल एंगल के लिए यूज किया जाता है। तो ये में क्या गिवन दिया है कि ए बी एंड ए डी का एंगल सेम है, और ये बी एंगल भी एक्स वाई प्लेन में है, डी भी एक्स वाई प्लेन में है, और ए भी एक्स वाई प्लेन में ही है, तीनों एक्स वाई प्लेन में है। तो अगर हम ये बी वेक्टर इस प्रकार से बना लें, बी एंड डी, दो वेक्टर मान लीजिए बी एंड डी है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये ए वेक्टर है? क्या हम ये कह सकते हैं कि दोनों एंगल सेम है? ऑब्वियसली ये एंगल मैंने ऑलमोस्ट हाफ हाफ ही बनाया है, तो ये दोनों एंगल सेम है, ये दोनों एंगल सेम है। तो हमें यही रिक्वायरमेंट थी हमारी कि ए और बी का एंगल, तो ये हमारा ए और बी के बीच का एंगल, और ये हमारा ए और डी के बीच का एंगल, ये दोनों एंगल सेम है, दोनों एंगल सेम है। तो इस तरह की डायग्राम में क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है, बट ये तो इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, तो हमने अभी भी फॉर्मूला स्टडी किया है कि ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं लैम्डा बी कैप प्लस डी कैप। हमने अभी ये स्टडी किया था कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है बी कैप प्लस डी कैप, लैम्डा तो बाहर लिखा जाता है उसकी लेंथ के लिए। तो अब ये बी कैप और डी कैप को हम ऐड करें तो हमें मिलेगा 3i प्लस 3j, ये हमें मिल जाएगा। तो ये हो गया 3 लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप। अब हमें ये वेक्टर ए वेक्टर कैसा चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, इसकी लेंथ हमें 1 चाहिए। तो क्योंकि हमें इसकी लेंथ 1 चाहिए तो हम
इसको ए वेक्टर बाय ए वेक्टर मॉड लिख सकते हैं। अब ए वेक्टर हमारा कौन है, 3 लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है हमारा 3 लैम्डा इंटू √2, ये 3 लैम्डा का मैग्नीट्यूड एंड आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड। अब यहां से हमें मिलेगा आई कैप प्लस जे कैप बाय √2 और मॉड लैम्डा, लैम्डा में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो अगर लैम्डा को हम प्लस से खोलें तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो बाहर प्लस आ जाएगा, और अगर लैम्डा नेगेटिव हुआ तो ये आपस में कटेंगे तो बाहर आ जाएगा माइनस, और लैम्डा नेगेटिव हुआ तो उस केस में हमारा वेक्टर इधर की तरफ जाएगा। हमने अभी भी पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर्स ए एंड बी हैं तो ये ए कैप प्लस बी कैप होगा विद प्लस साइन, और ये ए कैप प्लस बी कैप होगा विद माइनस साइन। तो अगर हम प्लस साइन लेते हैं तो हमें ये वेक्टर मिलेगा, और अगर हम माइनस साइन लेते हैं तो हमें ये वाला वेक्टर मिलेगा। अब इन दोनों में से हमें कौन सा वेक्टर चाहिए, तो ये वेक्टर अगर हम इधर की तरफ लें तो क्या ए और बी के बीच का एंगल और ए और डी के बीच का एंगल सेम होगा, बिल्कुल। ये एंगल हमारा हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो हमारा इस वेक्टर के लिए भी ए और बी के बीच का एंगल और ए और डी के बीच का एंगल सेम है। तो हम ये वेक्टर फॉरवर्ड भी ले सकते हैं, बैकवर्ड भी ले सकते हैं। तो फॉरवर्ड लेना है तो हम प्लस साइन लेंगे, बैकवर्ड लेना है तो माइनस साइन लेंगे, तो ये दोनों ही वेक्टर हमारा आंसर में आ जाएंगे। तो ये हमने पढ़ा एंगल बाइसेक्टर्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स।